Well, this morning, as you all know, that it was Justin's turn to preach, but somewhere um, he's unwell. He's pretty badly sick, so we need to pray for him. Quite a few of us are not doing well. Evie's family is also not well, so we need to pray for them. Given that this happened just the last night, around right after the meeting, that it was known that I would have to step in to speak, I have prepared nothing new. So I'm going to rehearse with you what we did over the last few weeks on Saturday evenings. Therefore, we read Genesis chapter 2. चूँकि भाई जस्टिन का प्रचार का समय था आज, वो नहीं आ पाए, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए आज ये मौका हमारे पर है। और मैं जो हम पिछले शनिवार के शामों को करते आए हैं मसीही विवाह के बारे में, उसको हम एक बार और दोहरा के सीखेंगे आज। जबकि हमने उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 15 से लेकर 24 तक पढ़ा है, परंतु आज के अध्ययन के लिए हमारा ध्यान 23-24 पर रहेगा। We'll focus on verses 23 and 24 for this morning's sermon, and I would request your kind attention towards me. The title to my sermon this morning is Created for Relationship, or if you want to have a more modern way to look at it, Wired for Relationship. हमें परमेश्वर ने रिश्तों के लिए तैयार किया गया है। हमारे डीएनए का जो इम्प्रिंट है, उसके ऊपर जो छाप लगी है, वो पैसे कमाने, शौहरत की कमाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई के लिए नहीं है, परंतु हमको प्रभु ने किसके लिए सृजा है? रिश्तों के लिए सृजा है। Marriage is man's highest, marriage of the man and woman is the highest form of beauty that this creation has seen. It is beautiful because God has created it. 2 journalists who are making a case against the institution of marriage, titled their book as A Case Against Marriage, wrote, the question is not why fewer people are getting married, but the question is why are so many getting married in a world like ours. सवाल ये नहीं कि कम लोग क्यों शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। सवाल ये लेखक कहता है, जो विवाह की उस संस्था के खिलाफ लिखता है, वो सवाल करता हुआ कहता है, सवाल ये है कि इतनी लोग शादियां क्यों कर रहे हैं। आज आप जानते हो हमारे देश भर में और अन्य प्रदेशों में, प्रांतों में, राज्यों में, देशों में शादी का जो माहौल है, शादी का जो इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, वो काफ़ी व्यापक है। We all know the institution of marriage, the industry of marriage, now that it is an industry of marriage, especially the wedding scenarios. It's a prolific, it's a booming industry which will not run out of its business ever. तो इस प्रश्न का कि इतने लोग शादी क्यों करते हैं, वो अलग बात है कि शादियां उतनी ही टूटती हैं जितनी बन रही हैं, पर सवाल ये कि क्यों शादियां आखिर लोग करते हैं, उसका जवाब इसमें है कि मैरिज ओरिजिनेट्स इन द हार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल गॉड. The reason why people get married is not because it's a social construct. It would have been easier to remove it then, but it's part of a DNA and design. We as a humanity were designed to be instituted, to be put together, man and woman in an institution of marriage, man and woman. Therefore, marriage is an institution which is laid in beauty and is soulfully enchanting. It's a beautiful relationship between a man and a woman. And today I would like to present to you, before you, why is marriage so beautiful? Why is this design so beautiful? Therefore, let me start off with the statement. We are designed, wired, created, crafted, carved for relationship. There are 3 things that I would like to bring to your notice from this passage. Genesis chapter 2 verses 23. 3 चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 23 और 24वें आयत में constitutional sameness, that is what we're going to look at. Verses 23 यानी संवैधानिक समानता या मौलिक समानता, पुरुष और स्त्री के बीच में एक मौलिक समानता है, उसको हम 23वें पद में देखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि अनुकूलिक विभिन्नता और complementary distinctiveness. We're going to see about how we are complementary yet distinctive.
And lastly, we're going to look at compositional same oneness, compositional oneness. What is that in Hindi? रचनात्मक समानता. तो हम इन तीनों चीज़ों को आज देखने की कोशिश करेंगे. 23वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, if you read verses 23, the man said, and then what follows is Hebrew poetry. अगर आप 23वें पद को देखेंगे, हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री के बीच में मौलिक समानता है, एक संवैधानिक समानता है. So when you look at verse 23, it's sheer beauty and elegance of a woman presented by God to man evokes a response in him. He is poetically charged and he comes up with a response which is romantic and poetical in its nature. What is he responding to? यहाँ पे पुरुष किस बात को respond करता हुआ कह रहा है, और या अपने आप को कवि बनाता है, कविता का प्रस्तुत क्यों करता है? किस बात से वो इतना उत्तेजित है? कौन सी ऐसी बात है जो उसको इतनी रुमानी बनाती है कि वो एक कवि बन जाता है और कविता के शब्दों को यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत करता है? ही इज रिस्पॉन्डिंग नॉट टू हर एबिलिटी एंड क्षमता, बट ही इज रिस्पॉन्डिंग टू हर अस्तित्व, सार, तत्व. He is responding to her substance. It's a poetical response to the sameness with which the woman is created by God. In seeing her beauty, he sees himself. जब उसने अपनी आंखों को खोला, वो नींद में था, जैसे कि आपने अगर ध्यान दिया होगा वचन के पढ़े जाने पर, कि प्रभु ने उसको गहरी नींद में डाला, स्त्री की उसने सृष्टि की. जब उसने आंखें खोली, नींद से जब वो खुला, तो उसके जैसा कोई दिखा उसे. ना तो पुरुष को तब उसको ये एहसास था कि इसकी भूमिकाएं क्या हैं, ना तो उसको ये एहसास था कि इसके ये क्या करेगी, इसकी क्षमताएं क्या हैं, इस स्त्री की क्षमताएं क्या हैं. बस उसको एक चीज़ दिखा. क्या वो चीज़ थी? कि इसका अस्तित्व, इसका सार, इसका तत्व, इस स्त्री का तत्व मेरे समान है. एक मौलिक समानता दिखी उसको. He sees a constitutional sameness and therefore he is in acknowledgement. सो के उठकर स्त्री को जब देखता है तो वो इस बात को प्रतिस्थापित कर देता है. कहता क्या है? कि ये परमेश्वर की देन है. मैं तो सोया हुआ था. This is God's creation and therefore he acknowledges God as the creator. परमेश्वर रचनाकार है. इस बात को वो प्रतिस्थापित करता है, इस बात का वो अंगीकार करता है. जब वो कहता है कि ये स्त्री मेरे समान है, मेरी हड्डी का हड्डी, मेरे मांस का मांस है, तो इस बात को वो कहना चाहता है, अंगीकार करता है कि स्त्री जो है परमेश्वर की बनाई रचना है, परमेश्वर रचनाकार है. शारीरिक तौर पे वे अलग है. जब पुरुष ने अपनी आंखें खोली होगी और स्त्री को देखा होगा तो उसको इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि सेक्सुअली, फिजिकली दे आर डिफरेंट. शारीरिक तौर पे अलग है, परंतु उसको इस बात का भी एहसास हुआ होगा कि मूल रूप में, प्राकृतिक तौर पर, पदार्थ के रूप में वो एक हैं. इसलिए हम इस पहले पॉइंट को मौलिक समानता, संवैधानिक समानता कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में एक इक्वालिटी है, एक मौलिक बराबरी है. इक्वालिटी का हिंदी क्या है? भूल गया. समानता. पुरुष ऊपर, स्त्री निचले वर्ग की नहीं है. ये दोनों परमेश्वर के स्वरूपता में सृजे गए हैं और वह मूल रूप में एक हैं. एंड दैट इज व्हाई दे इनहेरिट वन नेचर एंड वन सब्सटेंस. जो मैं हूं, मैं हड्डी पसली एक, स्त्री भी, मेरी पत्नी मेरे सामान्य है, मौलिक तौर पर, मूल रूप पर सामान्य है. This verse is the acknowledgement by Adam that God is creator of both him and her. यहाँ पे आदम इस बात को मान लेता है, अंगीकार करता है कि ये परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है और इस स्त्री का भी. आप समझ रहे हैं? एंड हेंस दोनों का स्रोत और दोनों का जो रचनाकार है वो परमेश्वर एक है. पुरुष और स्त्री का रचनाकार और स्रोत एक है. God is the designer, He is the source and the designer for man and woman. And therefore, man acknowledges
that Eve is of a higher form than the animals. अगर आपने ध्यान दिया होगा वचन पढ़ने पर, जब इस 23 से पहले आयतों को आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आदम के सामने जानवरों को लेके आता है, आदम उनके नामों को डालता है। क्यों लेके आता है? आदम को ये समझाने के लिए कि इन जानवरों में उसके समानता में कोई नहीं है, ये जानवर हैं। परंतु इस बात को जब वो आंखें खोलता है तो वो इस बात को मानता है कि जो स्त्री है वो जानवरों से ऊपर है और उसके समानता में है। There is a constitutional sameness which he acknowledges when he opens his eyes and he comes up with this romantic poetry. He is acknowledging the fact that she is above the animal kingdom and she is same as me. You understand? She has a form which is of a higher degree than that of the animal. She is of a form like him. मेरे समान, मेरे जैसा फॉर्म है इसका, मेरे जैसा आकार है इसका। Now, आकार शब्द का जब आप प्रयोग करते हैं तो आकार सौंदर्य का एक पार्ट है, कंपोनेंट है, एक अंश है, सौंदर्य का एक अंश है। बिना आकार के आप किसी चीज को खूबसूरत या सौंदर्यपूर्ण नहीं कहते हो। That is why when Adam looks at the animal, he doesn't evoke the same expression. There's no poetry. He may have liked the animals, he may have seen the animals, he may have enjoyed the animals, but there is no poetry when it comes to animals. जब जानवरों को देखता है तो कोई पोएट्री, कोई कविता निकल के नहीं आती। परंतु यहां पे हम इस बात को समझते हैं कि आकार सौंदर्य का एक अंश है और वो वो स्त्री में उस आकार को देखता है, उस सौंदर्य को देखता है, और वो स्त्री में इतना सौंदर्य देखता है कि सूर्यास्त से ज्यादा सौंदर्यपूर्ण उसके लिए स्त्री है। For Adam, she's far more exceedingly beautiful than the sunset that he would have witnessed at that point of time. Therefore, he identifies with her intentionally. Why does he identify with her intentionally? Because he accepts the fact that she is of his same form, higher form than that of the animal, and therefore there is a constitutional sameness. एक मौलिक समानता, एक मूल रूपिक समानता वहां पे उसको दिखता है। रे ऑटलैंड करके एक प्रभु के दास हैं, उन्होंने यूं कहा है, He identifies with her. वो उसके साथ पहचानता है। His heart is drawn towards her. He prizes her. वो उसे बहुमूल्य पाता है। He rejoices over her. He praises God for her. And in thanking God for her, he perceives her as an intimate with himself. जब वो परमेश्वर को स्त्री के लिए धन्यवाद देता है तो वो इस बात को मानता है कि ये स्त्री उसके समीपता के लिए, निकटता के लिए है। आज की भाषा में अगर हम बोलें, इन टुडेज लिंगो, हम ये कहेंगे इसके साथ आदम की कनेक्शन और अच्छी वाइब बैठती है। He feels the connection and the vibe, and whatever that means, that's what he's feeling. There's layering of emotions, and there is poetry coming out of his mouth, and the expression that she is bone of my bone and flesh of my flesh is not flirtatious words. जब वो कहता है ये मांस मेरी है और हड्डी की हड्डी मेरी है, तो ये चुलबुली बात नहीं है। समझ? उसके आकार पर, उसके फिगर पर यहाँ पे आदम कमेंट नहीं कर रहा है। Adam is not talking about her curves, he is talking about her crux. That's what Adam is talking about. Adam is saying she is from within me. There is a constitutional sameness. एक मौलिक आधार है। उसका शरीर की आकार नहीं बल्कि उसका मूल मौलिक आधार मेरे समान है, और इसलिए मैं इसे समझता हूं, अपना समझता हूं, अपनी जैसा समझता हूं। जब आप एक्सप्रेशन जब पढ़ते हैं, बोन ऑफ माई बोन, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, इसमें जैसे हमने कल देखा था, एक कवनेंटल कमिटमेंट, एक वाचारूपिक समर्पण आप इन शब्दों में देखते हो। यह हड्डी, बोन ऑफ माई बोन, मेरी हड्डी, क्या है हिंदी में? हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस है मेरी जैसे, यानी वाचारूपिक एक अटूट बंधन।
इस बात को हम यहां पे समझते हैं, एक अटूट सा बंधन है यहां पे पुरुष और स्त्री में जब वो विवाहित होते हैं, और एक समर्पण आप देखते हैं, आप वहां पे देखते हैं कि कैसे वाचा रूपिक समर्पण यहां पे पुरुष ने स्त्री से पहल की है, इस बात को जानकर कि मूल रूप पर आधारिक तौर पर, मौलिक तौर पर स्त्री और पुरुष एक हैं। यहां पे एक वचन के टिप्पणीकार यूं कहते हैं, thus it would serve as a biblical counterpart to the modern marriage in weakness, in flesh, in strength, that is in bone. So the next time when you feel the urge to flirt around with a woman, be careful, because you are commenting on a deeply sacred creation of God which represents the image of God. अगली बार लड़की को देखकर चुलबुली सा कमेंट करने का मन करे तो याद रखिए कि आपका कमेंट एवं एक चीज पर, वस्तु पर नहीं है, ये परमेश्वर की स्वरूपता में सृजा गया, मौलिक तौर पर, मूलभूत आधार पर पुरुष के एकता में, समानता में सृजी सृष्टि है। You and I cannot take this in small way. So God requires your respect and covenantal commitment. Men, husbands, would-be husbands, God requires your respect and covenantal commitment because He is the one who created the woman. Their constitutional forms creates layers of exceptional beauty. The beauty is reflective of the God of the Bible. When in the union of man and a woman, you see a personal community being formed, and that is a reflection of a triune God. जब परमेश्वर ने कहा हम इनको अपनी स्वरूपता में बनाएंगे, तो इनकी एक होने पर इन दोनों के, पुरुष और स्त्री, इस बात को मानते हुए, प्रतिस्थापित करते हुए कि ये हम एक हैं, एक समान हैं, मौलिक तौर पर, मूल रूप में हम एक आधार के हैं, इस बात को मानते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे में वो खूबसूरती झलकेगी जो परमेश्वर की है, और वो हमसे प्रभु चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जो बाइबल का है, ईश्वर, गॉड ऑफ द बाइबल इज नॉट अ फॉर्मलेस, merely a force, a power floating somewhere in the universe. कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक नहीं है और आत्मिक है, तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। बाइबल, द गॉड ऑफ द बाइबल हैज अ स्ट्रक्चर, अ फॉर्म, एन एसेंस, अ नेचर टू हिम। एंड उसका फॉर्म क्या है, उसकी आकृति क्या है? उसका आकृति ये है कि वो त्रिएक परमेश्वर, व्यक्तिगत परमेश्वर है। He is a triune God who is a personal God, and that is his form, the Father, the Son, the Holy Spirit. They're same, they're constitutionally same. संवैधानिक तौर पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, मूल रूप में एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, उनमें ऊंच नीच का विचार नहीं है, उनमें कौन प्रभावशाली है, कौन कमज़ोर नहीं है, वे एक तौर पर, आधारिक तौर पर, मूल रूप में एक हैं। और उनकी एकता और उनकी विभिन्नता एक मनमोहक सौंदर्य को आपके सामने प्रस्तुत करती है कि कैसे वे एक हैं और त्रिएक हैं। ये हमारे विचार से परे जरूर हैं, पर हम इस बात को जरूर समझ सकते हैं कि वे एक दूसरे को अपनाते हैं। कोई ऊंच नीच का विचार नहीं, हम बड़े हैं तुम छोटे हो वाला बात नहीं, हम पहले हैं तुम बाद के हो बात नहीं, हमारा काम ये है तुम्हारा काम वो है, इसके आधार पे उनमें भिन्नता नहीं है। This God of the Bible is a mesmerizing beauty because they are together. वो प्रभावशाली मनमोहक सौंदर्य को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और उसी प्रकार मनुष्य से, पुरुष से और स्त्री को कहा गया है कि वह समान है, वो मौलिक तौर पर समानता है। There is a wonderful equality that a man and a woman share because of the God who has created them. And that equality brings the beauty.
And if there is anything that erodes that equality, or stumps that equality, or kills that equality, or aberrates that equality, then it's against the design of God. That's a misrepresentation of God. तो इस बात को हमें समझना जरूरी है. हमारे में एक मौलिक समानता है. क्लियर है? अगली बात जो यहाँ पे मूसा लिखते हुए बात करते हुए हमको बताता है कि बहरहाल मौलिक समानता तो है, पर एक विभिन्नता भी है. अब वो विभिन्नता कुछ इस प्रकार है. Point 2 for this morning is that there is a complemental distinctiveness between a man and a woman. अब इसको मैं हिंदी में कैसे समझाऊं? अनुकूलिक विभिन्नता. अनुकूल है पर विभिन्न है. आप समझ रहे मेरी बात? मौलिक तौर पे वो समान है. अब हम आते हैं उनकी विभिन्नता पे. वो अनुकूल हैं, दे आर मेड फॉर ईच अदर है, पर अलग है. कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था हिब्रू भाषा में? हेल्पर फिट फॉर हिम, लाइक हिम बट नॉट लाइक हिम, लाइक हिम बट नॉट लाइक हिम. यहां पे उस बात को हम आज देखेंगे. अनुकूलिक विभिन्नता. while a man and a woman are essentially same, there exists a fundamental polarity. एक प्रकार की मूलभूत ध्रुवता देखते हैं आप इनमें. इनके 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 जो how they think, how they are, there is a polarity, there is a fundamental distinctiveness. उनके there is a complemental distinctiveness in their gender roles. उनके लैंगिक भूमिकाओं में अलगाव है. आदम कहता है this one will be called woman for she is taken from a man. She is like me. इस बात को कहा जरूर है, पर अब यह क्या कहता है? क्या कहता है? इसे स्त्री बुलाया जाएगा. मैं पुरुष, ये स्त्री. तो ये मेरे जैसा है, जैसी है, बट मेरे जैसे नहीं है. आप समझ रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा दिमाग लगाइए. शी इज लाइक मी, शी इज मी, constitutionally exactly the same, but there is a difference. That's why I'm man and she will be woman. She's in the second part of the statement, it is clearly evident that there is a binary in the design of a man and woman, and this too is beautiful. यानी पुरुष और स्त्री के डिजाइन में एक दो भागिकता को आप देखते हैं. यानी पुरुष है और स्त्री है, पुरुष स्त्री और फिर कोई और नहीं. पुरुष है और स्त्री है. ये डिजाइन है. एंड ये सुंदरता है. यानी ये दो जो हैं वो दो हैं, पर वो विवाह में एक है. ये दो हैं. Adam still in his poetry takes the lead in naming her and identifies her source as from the man. यहाँ पे आदम कहता है कि क्योंकि वो पुरुष से ली गई है इसलिए वो स्त्री कहलाएगी. तो आपको लगेगा यार वाह क्या बात है, आदम ने तो इसका नाम भी दे दिया. यानी आदम अपने आप को सोर्स बनाता है, इसलिए आदम उसके ऊपर है. क्या इस बात को वो कहता है? यहाँ पे वो पुरुष की प्राधान्यता को नहीं बताता. ही इज नॉट लुकिंग डाउन एट अ वुमन फ्रॉम अ मेल ईगो. पुरुष के अहंकार से होकर ये बात को नहीं कहता है. वो उस परमेश्वर की दया को, अनुग्रह को मानते हुए कि ये स्त्री को पुरुष को परमेश्वर ने दिया है एक सहायक. और सहायक शब्द का हमने आंकलन किया था पिछले शनिवार को. उसमें घुसने का हमारे पास वक्त नहीं है, परंतु आप इस बात को समझिए, यहाँ पे अहंकारी पुरुष की बोल नहीं है. ये एक रूमानी पुरुष के बोल हैं जिसका मन मोह लिया गया है. स्त्री के सौंदर्य ने उसके मन को छा लिया है. उसके बोल कवि के बोल हैं और अहंकारी बोल नहीं होते हैं कवि के. तो यहाँ पे वो कहता है कि इंस्टेड ही इज कैप्टिवेटेड बाय हर प्रेजेंस. उसकी उपस्थिति और उसके सौंदर्य ने उसको झंझोर दिया, उसके मन को मोह लिया. ही इज लुकिंग एट अ वुमन हु इज फार विद हिम इन एन एसेंस एंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बट ही इज लुकिंग एट अ वुमन हु इज डिस्टिंक्ट इन हर जेंडर. उसके जेंडर में, उसके वहाँ पे वो लैंगिक फर्क को वहाँ पे वो देखता है.
He calls her a woman. प्रकृति में वो एक हैं, लैंगिक तौर पर वो विभिन्न हैं. There are two different complete individuals who completely different set of capacities, abilities and roles. ये दो इंसान जो हैं वो विभिन्न हैं. वो एक हैं पर वो विभिन्न भी हैं. उनकी क्षमताएं अलग हैं, उनकी हिम्मत अलग अलग हैं, उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं. बट यहाँ पे उनको एक हायरार्किकल ऑर्डर में रखा गया है. टू फुलफिल गॉड्स ग्लोरीफाइंग पर्पस फॉर विच दे आर क्रिएटेड. एक ऐसा ऑर्डर में रखा गया है जहां पे परमेश्वर की महिमा हो. इट्स अ लीडरशिप हेल्परशिप कॉम्बिनेशन दैट गॉड हैज पुट हियर. यहाँ पे नेतृत्व सहायक की भूमिका यहाँ पे पुरुष और स्त्री को दिया गया है कि वो उस परमेश्वर के सौंदर्य को झलका पाए. Your leadership, your helpership is not your identity for yourself to claim and to claim that this is who I am. But your leadership is ultimately serving men. Your headship serves the purposes of God and brings glory to God and presents God as beautiful. This is what makes them beautiful. Now because I use the word hierarchy, and that's an abomination in today's world. You don't use such words, hierarchy. But let me make a proposal here. जैसे मैंने बोला कि आकार जो है, form is a component of beauty. Hierarchy too is a component of beauty. Hierarchy जो है वो सौंदर्य का अंश है. You can't talk about beauty without hierarchy. आप सौंदर्य के बारे में एक क्रम अनुसार जो ऑर्डरिंग होता है उसके बारे में आप सौंदर्य के विषय में आप बात नहीं कर सकते. When you look at a girl or a woman and say you are beautiful, you're looking at a hierarchy. You're looking at someone someone's body with their head first and then hands and torso and legs. He's not looking at a disordered embodiment here. He is looking at someone with head, hands, shoulder, torso, limbs. Beauty has an hierarchy. A commentator says hierarchy is one of the most important aesthetic principles. आप जब ताजमहल देखने जाओगे तो ताजमहल में भी आप एक हायरार्की देखोगे, एक डोम देखोगे, उसके बाद उसकी ढांचा देखोगे. आप सिर्फ डोम को देख के नहीं कहते हो कि ये खूबसूरत है. Would you say that? You are not looking at the dome of the Taj Mahal and saying ये बहुत ही खूबसूरत है. No, you don't. You look at the whole structure, which includes the dome, includes the structure and the minarets, and then you say, that's beautiful. That's beautiful. So hierarchy is one of the most important aesthetic principles. Hierarchy is nothing but ordering of different forms in a particular composition. What is hierarchy at this best explanation? It's ordering. आप hierarchy जब कहते हैं इसका हिंदी शब्द बड़ा क्रम अनुसार, यानी आप कुछ को क्रम अनुसार रखते हैं. आप अपने घर को भी क्रम अनुसार ऑर्गेनाइज करते हैं. आपके घर में भी लिविंग रूम पहले आता है, बेडरूम पहले आता है, बाद में आता है. ऐसे एवरीथिंग हैज एन ऑर्डरिंग टू इट, एंड ऑर्डर इज ब्यूटी. ब्यूटी इज ऑर्डर. सौंदर्य को हम सब कुछ कोई चीज़ सौंदर्यपूर्ण है क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्रम अनुसार वो आयोजित किया गया है, उसको रखा गया है. और इसलिए एटम से लेके आपका ऐप जो आपके फ़ोनों में ऐप है उसमें एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है. आप चाहे फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, बायोलॉजी करें, सोशल साइंस करें, कुछ भी कर लें, कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर लें, उसमें आप एक हायरार्किकल ऑर्डर देखोगे. You will have to acknowledge that everything has an ordering, and when you order it according to its ordering, its form factor, you will say this is beautiful. तब आप कहोगे कि Adam and Eve were part of a story ordered into achieving God's purpose to form an earthly community which reflects the divine community. When God says, let us make man in our own image, let's make them male and female in our own image and likeness, he's saying they are saying, the triune God is saying, they will reflect us on earth. Man is not hierarchically at the top because he deserves it or because he's superior ontologically.
ऐसा नहीं कि मनुष्य पुरुष को जो है उसको एकदम श्रेष्ठ स्थान दे दिया गया है क्योंकि भाई उसमें वो बूता है. ही इज नॉट सुपीरियर बाय डिजाइन. ही इज नॉट सुपीरियर बाय डिजाइन. He is not superior by his substance, by the virtue of being created first. It's God's grace. मनुष्य को नेतृत्व, पुरुष को नेतृत्व स्थान उसकी योग्यता या उसके श्रेष्ठता के कारण नहीं दिया गया. यह परमेश्वर की अनुग्रह है जो उसके जब वो अपना नेतृत्व स्थान देखता है तो वो परमेश्वर को देखता है और वो परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करता है. Adam must reflect God's covenantal outflowing love in his headship. God flows out in his love. God flows. Adam should give love to his wife. His headship is not tyrannical in character and nature. His headship is an outflowing of his love. His headship is not a privilege that he has, but a position of accountability and of responsibility to his Creator. By the virtue of you being a man, a purush or a husband in your relationship with your wife, आपकी एक जवाबदेही है, आपका एक उत्तरदायित्व है, आपका एक महत्वपूर्ण कार्य है अपने परमेश्वर के प्रति. ये आपके लिए आपका सौभाग्य नहीं है. Do not sit here thinking you are a male, you are a man and you have the privilege of being born a man in a society like ours where the birth of a male child is celebrated and the birth of a female is looked down on. In a society like this, we as Christians have to make the difference. And that comes only when you understand, when you look at the Trinity and you don't find them disordered and dismembered, disjointed. The Father is logically, not temporally, logically prior to the Son because the Father by nature begets the Son. The Son does not beget the Father. That's what the Bible says, my only begotten Son. It's a logical application. We'll talk about it when we come to Trinity, when we take up Trinity. Yet we know the Son affirms the unity with Father, saying that I and my Father are what? One. I and my Father are one. Hierarchy inside the Trinity is not oppressive, no demeaning, it's not autocratic. The Son is in submission to the Father. He said when he was on the earth, he said, I have my food is to do what? To do the will of the Father. Yes, you look at that. That's the beauty of submission. Is he less than the Father? Is he constitutionally any less than the Father? He says, I and my Father are one. That's what I said last evening. You cannot be one unless you know that you are equally created of an equal substance. Adam exercises his headship, then must bring out, in the exercise of his headship, must bring out the womanliness in the woman. अपने नेतृत्व के द्वारा स्त्री होने के उस सार को वो उभारेगा. आज हम अपने नेतृत्व में ऐसा नहीं करते. हम मारा पीटी करते हैं, गाली गलौज बकते हैं. हम पुरुषों को ऐसा एहसास होता है कि हमारे में वो क्षमता है, वो ताकत है. हम एक मुक्का लगा दें, स्त्री जो है दराशाही हो जाएगी. ये एहसास है हमको आज. और हम अपने पति होने को इस प्रकार से उपयोग करते हैं. ये सरासर खावड़िस है, इसको बुजदिली है. ये पौरुषत्व नहीं है, ये कुछ और है. अगर आप ऐसे हैं कि शादी में, आपके विचार में, विवाह में, या आपके विचार में आप शादीशुदा हो, तो अगर आपके बर्ताव ऐसा है और शादीशुदा ना हो और आपकी विचार ऐसी है, तो आज मैं इस विचार को खंडन करना चाहता हूँ. इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कतई बुजदिली होगी कि आप अपने क्षमता को, अपनी ताकत को इस प्रकार लगाएं और अत्याचारी बने. डोंट बिकम अ oppressor because you are a man and you think that you have the ability,
the bodily, physically strength to assault your wife. Please don't do that. Because when you do that, you are not bringing out a woman in the woman, the womanliness in the woman. You're dehumanizing her. आप स्त्री को उभार नहीं रहे हो. आपकी बुलावा, आपका उत्तरदायित्व, आपकी जवाबदेही उस परमेश्वर की ओर है. और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप उस स्त्री को उसके स्त्रीपन से उसको कम कर देते हैं, उसके आकार को, उसके सौंदर्य को कम कर देते हैं. परमेश्वर ने स्त्री को जानवर के ऊपर बनाया, उसके आकार को ऊपर रखा है. पर आपका अगर व्यवहार इस प्रकार है तो आप कहते हो कि ये मेरी नहीं है, मेरे समान नहीं है, ये जानवर समान है. जानवर को तो आप लात मार देंगे, जानवर को ही लात मार सकते हो, इंसान को नहीं मार सकते. अगर इंसानियत है, इंसान को नहीं. अगर पौरुषत्व है परमेश्वर की ओर से और आप जवाबदेही हैं तो आप स्त्री के प्रति ऐसे मनसा नहीं रखेंगे. इस बात को मैं आपके सामने कहना चाहता हूं. बिकॉज एडम्स रोल एज अ लीडर इज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स गिफ्ट ऑफ एन हेल्पर टू हिम. आदम यहां पे आंखें खोलता है और स्त्री को देखता है और कहता है, हे प्रभु धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, ये आपकी कृपा है, ये आपकी देन है, ये वरदान है. और हम गिफ्ट को ऐसे नहीं रखते हैं जिसका जो हमारे लिए दिया जाता है उसका एक महत्व होता है. दैट इज व्हाई एडम सिंग्स ऑफ हिज हेडशिप इन अ पोम एंड डज नॉट assert with brute force. Adam's headship points to a movement that he has towards the woman, and that brings our last point. एक मूवमेंट, एक चलन को आप देखते हैं, प्रेम के चलन को आप यहाँ पे देखते हैं. Third point for this morning, we have looked at constitutional sameness, complemental distinctiveness, and thirdly we are going to look at what? Compositional oneness, rachnatmak ekta. With a covenantal commitment that comes from the movement of love towards, comes a movement of love towards the woman. Love creates at the baseline of all these creation story. आपने अगर हमारे साथ उत्पत्ति किया होगा आपको समझ में आया होगा. We were tracing the love of the Father through Genesis 1 and 2. And what is the basis of human relationship? Love. What's the basis of an institution like marriage? Love. And what is love? It is movement of love towards the woman. That is what you see in marriage. It's a prem ka chalan. Love creates a beautiful union. एक ऐसे एक खूबसूरत एकता को यहाँ पे प्रेम रचता है. Their constitutional sameness, their complemental distinctiveness must result in a compositional oneness in love. In other words, they become one. There must be unity. There must be a movement. The oneness starts with the Hebrew word. यहाँ पे जब, let me just give you a little grammar in English and then I'll try to translate it in Hindi. Hebrew wordplay from man to woman. What does man say? Huh? What's that line there? This is one will be called woman, for she is taken from man. The word for man, आप सुन रहे हैं Hebrew में? The word for man in Hebrew is ish. Ishq नहीं, ish. I-S-H. And the word for Hebrew, the woman in Hebrew, is isha. I-S-H-A. So what is that? When you read it in Hebrew, and I'm not very good at Hebrew actually, but anything which ends with an a sound, isha, Hebrew indicates a movement towards that object. That's what the indication is. So ish moves towards isha. अब्रानी भाषा में पुरुष के लिए इश शब्द का प्रयोग किया है, स्त्री के लिए ईशा शब्द का प्रयोग किया है. आदम कहता है मैं इश, मुझसे लिया गई ईशा. और इब्रानी भाषा में जो अ एंडिंग साउंड है, आ से जो समाप्त होते शब्द हैं, वो ये दिखाती हैं कि ये जो शब्द है वो उसके और बढ़ते हैं. देयर इज अ मूवमेंट ऑफ लव दैट यू सी इन हियर. दिस इज नॉट मियरली अ फीलिंग, ये एक एक्शन है.
एक्शन ऑफ विल है. दिस इज एन एक्शन ऑफ विल. दिस इज नॉट merely a feeling. There is a movement that Adam has to do. He is moving from his being a man to a woman and he moves in love. यहां पे केवल भावना नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का कार्य को आप देखते हैं. आप इच्छा करते हैं, आप मन से मानते हैं कि ये मेरी पत्नी है और आप उसकी ओर प्रेम में बढ़ते हैं. आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पति देवता है, वो आके बैठेगा, उसको खाना परोसना चाहिए. वो अपने आप से पानी नहीं पी सकता है, उसको पानी पिलाना चाहिए. वो अपने आप से ब्रश पर पेस्ट नहीं लगा सकता, उसको ब्रश में पेस्ट लगा के देना चाहिए. क्योंकि पति जो है वो क्या है? देवता है. हाँ, सॉक्स नहीं मिलते तो सॉक्स पहनाना पड़ता है, जूते नहीं मिलते तो जूते पहनाना पड़ता है, और अगर जूते नहीं मिले तो जूते पड़ते हैं किसको? ये हैं हमारे रिश्ते आजकल के. हाँ, दिस इज वाई अ मैन लीव्स हिज फादर एंड मदर एंड बॉन्ड्स विद हिज वाइफ एंड बिकम वन फ्लैश. You have to leave your father and mother and bond with your wife. That's what the Bible says. माँ का लाडला पापा की परी बन के मत बैठिएगा. आप ना तो माँ के लाडले हो शादी के बाद, ना पापा के परी हो शादी के बाद. आप एक हो, पति हो, पत्नी हो, एक हो. The union is comprehensive in nature. ये व्यापक और पूर्ण एकता है. ये एक मन, एक शरीर की एकता है. ये एक एक्सक्लूसिव, एक विशेष अनोखा प्रकार का एकता है. और ऐसा एकता आप इसकी झलक उस त्रिएक परमेश्वर में देख सकते हैं, जिसका जो एक है अपने सार में, परंतु उनके भूमिकाएं अलग अलग हैं. और यद्यपि उनके भूमिकाएं अलग अलग हैं, वह एक हैं प्रेम में. I and my father are one. And I wish you see how your marriage reflects the amazing beauty of a Trinitarian God. Man and woman are of a same essence and diverse role, just like one in the God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Their one flesh union brings forth into this world life. जब वो एक होते हैं, जब वो एक रहते हैं, तो वो क्या लाते हैं? जीवन लाते हैं. इस संसार में जीवन उत्पन्न करते हैं. That is why there is a man and a woman. At the very heart of marriage is not a human custom, says Ray Ortlund, variable according to changing times. It's divinely created institution defined for all cultures and all ages. Ray Ortlund करके प्रभु के दास हैं, उन्होंने कहा है कि विवाह के जो उसके केंद्र में ये कोई सामाजिक तौर तरीका नहीं है जो समय अनुसार बदलेगा. विवाह एक ईश्वरीय स्थापित संस्था है, और इस संस्था समय काल निकल जाए, आज से 1000 साल भी बीत जाए प्रभु आने के लिए, ये संस्था इस तरह ही अटल रहेगा. इसका डिजाइन आप और हम, ना इस संसार का इतिहास, ना इन संसार के आधुनिकरण, आधुनिक सोच इस संस्था की इस नींव को, इस सिद्धांत को बदल सकता है. और अगर आपने बदलने की कोशिश की, मैं आज सुबह उस मनसा को, उस मानसिकता को खंडन करता हूँ. The one flesh union can only happen between a man and a woman. Don't even try to unite between a man and a woman, which is becoming a crisis in our world. And we will talk about it whenever we can find time on what is happening in this world, present world today. But for our this morning's devotion, a man and a woman procreates and flourishes a human community. When you leave
and you cleave and you become one flesh, you are bringing a life into this world. और अगर आपने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा है, आप अपने जीवन के उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाए हैं और आप विवाहित हो गए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस बच्चों को आप इस संसार में लेके आएंगे, आप उनको हानि पहुंचाएंगे और आप इस संसार के सामाजिक तौर तरीकों पर हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका जीवन जो है वचन आधारित जीवन नहीं है। आपने संस्कृति और सभ्यता की पीछा करने के लिए रखा अपने मन को। वचन को अगर आपने पीछे छोड़ दिया है तो आप इस संसार में क्षति पहुंचाएंगे। You will cause harm to the very design and the creation of God. And I'll warn you this morning, मानव समुदाय को उत्पन्न करने और समृद्ध करने की क्षमता है एक पति और पत्नी के यूनियन में। Unless leaving does not happen, जकड़े मत रहिएगा। अपने माँ बाप को, भाई बहनों को जकड़ के पकड़ के मत बैठ जाइएगा, अलग होइएगा। हमने इस पे बहुत डिटेल में गौर फरमाया था शनिवार को। जो नहीं आ पाए आप प्लीज़, एक रिकॉर्डिंग नवीन ने अभी हाल में डाला है, उसको ज़रूर सुनिएगा। जो मुझको सुन रहे हैं और इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं पूर्णतः, उसको ज़रूर सुनने की कोशिश करिएगा। Unless leaving does not happen, the beauty of marriage will elude the married couple, lead to leave in sacrifice. Unlike common tradition where women are required to make all sacrifices, हमारे समाज में आज स्त्रियों से कहा जाता है कि तुमने अपना घर छोड़ दिया है, अब तुम्हारा घर नहीं रहा है, ये तुम हमारी पराया धन हो। एक ऐसे समाज में पुरुष से मैं कहता हूं, बाइबल कहती है तुम अपने घर को छोड़ो, एक नया घर स्थापित करो, उसके रखवाले बनो, उसका नेतृत्व तुम करो। If men are still holding to your parents as primary joy giver, you are not only hurting your spouse, you will hurt your kids and you will hurt your community. Indeed, it is sad that men of our land love to keep their relationship with their parents primary. मैंने अपने जान पहचान में कईयों बार सुना है, कईयों बार दिल दुखता है जब ऐसा सुनता हूँ कि पति कहता है मैं तो तुमसे अधिक अपने पापा मम्मी से प्रेम करूँगा, अब तुमको चाहे मेरे साथ रहना रह लो, जाना है तो चले जाओ, मैं तो अपने पापा के गोद, मम्मी के गोद में। अगर ऐसी स्थिति है तुम्हारे शादी में, हमारे शादी में, ये खंडनीय है। This must change. To leave and cleave is a covenantal language, and we looked at it last evening. Marriage is a covenantal bond exclusive between a man and a woman, and no third party enters it, whether it is our friends, your brother or sister, or your father, mother, whoever. Nobody interferes between you and your spouse. Lay that clear in your head. Young ones who are planning to be married, and those who are married and still struggling with it, make the decisive change that you need to today, which means that two are united in love and commitment. They now move towards each other, identifying each other as their primary object of love. C.S. Lewis says Christian teaching on marriage comes from Christ, who taught that a man and wife in marriage are to be regarded as a single organism. They have to become one. यहाँ पे सिर्फ एकता नहीं है। हमारे देश में हम कहते हैं ना, हम एक हैं, हमारी एकता है, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, पर वो वैसा एकता नहीं है। यहाँ पे एक हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, एक दूसरे में निवास कर लेते हैं। There is an interpenetration that is happening of the two souls when they get married. Creator tells us that a man and wife were to be united totally, comprehensively. There will be one, they will be physically united in an act of selflessness and represent a total union of their body and soul. इसलिए किसी प्रकार की संभोगिक गतिविधियां जो आप करते हैं विवाह के बाहर, किसी भी प्रकार के, विवाह से पहले या विवाह करने के बाद, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, आप अपने शरीर की ही क्षति नहीं पहुंचाते हैं, पर आप अपनी आत्मा को भी आप दंडित कर रहे हो।
इसलिए याद रखें भाइयों बहनों और हमारे युवाजनों, विवाह से पहले या विवाह के बाद किसी और से संभोगिक शारीरिक रिश्ता ना रखें, क्योंकि ऐसा करने पर वह आपके जीवन में ऐसे घाव छोड़ जाएगा. It will leave a scar for your lifetime and you will die with it. Please make sure that you are not entering into acts of pleasure which is nothing but a dehumanizing act. A reminder of a total exclusive union where nakedness is not a shame, nothing is held back or hidden, is what marriage brings to you. When marriage lacks total union like this, it is a poor reflection of who God is. अगर आपके विवाह में परमेश्वर, आपके विवाह में एक इस प्रकार की एक होना नहीं है, तो ये परमेश्वर को अच्छे से ना दिखाना है. उसका it's a lack, it's a poor reflection. Paul says the design of a marriage is not just coming from somewhere, some bang happened and we decided let's get married. He says it has been eternally designed. It has been purposed eternally. It has been designed in the pattern of Christ's love for the church. एफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस कहता है, as Christ loved the church. This is the mystery. What's the mystery? Mystery is Christ loved the church even before the foundation of the world. So when God put the foundation of the world, He designed marriage according to the love that Christ would have for the church. Marriage has a purpose. It has a pattern, and you would see the love of Christ for the church be exhibited. That's the calling. That's the purpose. ये इतना श्रेष्ठ एक संस्था है. इसको हल्के में लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है. And when you see that love of Christ unfold, what you see the beauty descend into the world of sin, selfishness, shame, violence and ugliness. Isaiah says, उस प्रभु को देखो, उसको विरूप कर दिया गया, उसके सौंदर्य को विरूप कर दिया, कुरूप हो गया है, वो देखने लायक नहीं रहा. The ultimate beauty gave himself. पौलुस कहता है फिलिपियों के पत्री में, he says in Philippians chapter 2 verses 5 onwards, let this mind be in you which was in Christ Jesus. For He gave up, He descended, He humbled Himself. He did not consider it robbery to be in equality with God, but gave up the use of His divine attributes, came down. That's how He loved the church. He came down, the ultimate beauty, hung on that cross, marred to restore beauty in our lives. वो उस क्रूस पर लटकाया गया, क्रूप किया गया, उसको दर्द दिया गया, उसके ऊपर अत्याचार किया गया, मारा गया, काटा गया, कूटा गया, इसलिए कि हम सुंदर बना दिए जाएं. हम सुंदर बना दिए जाएं, इसलिए कि भी हमारे विवाह सुंदर बना दिए जाएं. He hung on the cross, yes, to save us from our sins, but also to restore beauty in us, and to restore the beauty in our marriage. May God bless each one of you, and I hope that these sessions on marriage becomes an waking call for each one of us. Thank you.